So myself, Amit Kumar Sinha, Assistant Professor in Electrical Engineering Department from Access Institute of Technology and Management. Today we are having a topic of block diagram reduction. So what is it mean by block diagram? In the last or previous lecture of control system, we have seen that input is having a block, output is having a some type of value, and again a system is having some value. So this input, output and this system constitute together and performs make a block. So it is a short and pictorial representation. Block diagram is a pictorial representation of the effect and relationship between input and output. इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए जो सिस्टम को यूज करते हैं, उस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. So if the system is simple and has limited parameter, the block is simple and you are easily to calculate your transfer function. But suppose if it is a closed loop control system and a lot of system or lot of feedback is there or lot of parallel blocks are there, then it is complicated and you have to control or it is difficult to analyze it. So for that purpose, there are two methods which we used in control system to calculate the transfer function. The first one is your block diagram reduction, and the second one is your signal flow graph. Using this we will solve our transfer function. So block diagram fundamentals. आउटपुट की वैल्यू सपोज आपको कैलकुलेट करनी है. आपने यहाँ पे x ऑफ s इनपुट दे रखा है, आउटपुट आपके पास यहाँ पे y ऑफ s मिल रहा है और आपके पास सिस्टम की वैल्यू जो है वो 3s है. Then your output is multiplied with your system. So output is calculated as y of s is equal to 3s into x of s. ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेट होगा. इनपुट जो भी आपको इनपुट मिल रहा है, उस इनपुट को आपको सिस्टम के साथ कन्वर्ट करना है, कैलकुलेट करना है और आपको डिजायर्ड आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. सो योर आउटपुट y of s is equal to 3s into x of s. नेक्स्ट इज योर समिंग पॉइंट. समिंग पॉइंट इज नथिंग बट मीन्स एक जंक्शन होता है जहाँ पे वन और मोर सिग्नल आपस में आके कंबाइन होते हैं. सो वन और मोर सिग्नल, दैट मीन सपोज योर x इज देयर दैट इज हैविंग अ प्लस सिग्नल, y is here and having a signal of plus signal, and z is here having a signal of negative signal. So जब आपके पास one or more, that means positive and negative most or positive and means more positive signals or two or more signals are going to be combined together to achieve some certain output. So यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आउटपुट इज इक्वल टू योर x प्लस वाई माइनस जेड. जो भी सिग्नल के रिस्पॉन्स में आपका जो वैल्यू रहता है, सपोज करो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो x की वैल्यू यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिल रहा है. नेक्स्ट आपके पास y की वैल्यू अगेन पॉजिटिव वैल्यू है तो y की वैल्यू भी अगेन यहाँ पे पॉजिटिव है. बट जो z सिग्नल आपके पास यहाँ पे कंबाइन हो रहा है इस समिंग पॉइंट पे, तो ये जो आपके पास z सिग्नल जो नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आपको शो कर रहा है. सो दैट मीन्स टू और मोर सिग्नल कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड एट समिंग पॉइंट. ये जस्ट लाइक आपका एक जंक्शन होता है जहाँ पे आपको दो या दो से अधिक से मीन्स सिग्नल आके आपस में आप कंबाइन करता है और आपको आउटपुट प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इज योर टेक ऑफ पॉइंट. जैसा कि अभी हमने देखा था कि आपका समिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे दो या दो से अधिक सिग्नल आपके आपस में आके कंबाइन करते हैं. हियर द सिग्नल इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट. So this point is your take-off point. So there is no summing point. Only one take-off point is there. That is either in the form of positive direction or negative direction. Your value is again the same as it is. Means your output signal can be applied to when two or more points. Certain points are there. When these points are again connected to your input and output, the function will be changed according to your take-off point. Next we have a forward path and feedback path. So what is forward path? When the direction of your input, that is your R of S input, is to the output. If you follow a certain feedback path or forward path, so when the direction is from input to the output, that is called as forward path. And when again the signal is from output to the input, जब आपके पास जो सिग्नल जो होती है वो आउटपुट से इनपुट की तरफ जाती है तो आपके पास ये फीडबैक पाथ कहलाता है. तो यहाँ पे दो तरीके का पाथ होता है. जब सिस्टम आपका जो सिग्नल आप एरो के डायरेक्शन से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप एरो का डायरेक्शन अगर आप देखो तो ये कंटिन्यूअस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट साइड की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, अगर सेम आपके पास आउटपुट से अगर जब आपके पास जब ये मूव करता है इनपुट की तरफ, आप देखो यहाँ पे ये आउटपुट, यहाँ पे आपके पास ये सिग्नल आउटपुट था, आउटपुट से अगेन आपको ये इनपुट की तरफ में देखने को मिल रहा है, दैट इज सिग्नल इज कॉल्ड एज फीडबैक पाथ. तो दो आपके पास पाथ होते हैं, एक फॉरवर्ड पाथ और नेक्स्ट आपके पास मिलता है आपके पास फीडबैक पाथ. नाउ ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक.
कैसे हम किसी दो या दो से अधिक आपके पास ब्लॉक्स अगर हैं तो उन ब्लॉक्स को कैसे हम कंट्रोल करते हैं और कैसे इसको रिड्यूस करके छोटा करते हैं, ये हम लोगों को देखने को मिलता है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के थ्रू। सो हियर इनपुट इज योर आर ऑफ एस, G1 is your system, that is your S1, and then this signal is again applied to another system, that is your S2, and you will after performing this S2 you will get a meaningful output your C of S। यहाँ पे मेरे पास दो आपके पास ग्रुप था G1 और G2, दो सिस्टम मेरे पास है, एक इनपुट मेरे पास RS है, ठीक है, एक इनपुट। इसी के बाद जब RS का इनपुट जब दे रहे हम G1 को, तो G1 का जो आउटपुट है वो मुझे रिसीव हो रहा है R1 ऑफ S के रिस्पेक्ट में। तो R1 ऑफ S यहाँ पे जो है ये G ऑफ 2 का इनपुट हो जाएगा। सो G ऑफ T का इनपुट आपके पास R1 ऑफ S हो जाएगा एंड G ऑफ 2 का आउटपुट आपके पास C ऑफ S आपको देखने को मिल रहा है। सो योर वैल्यू ऑफ R1 ऑफ S इज इक्वल टू G1 इंटू R ऑफ S। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा भी था कि आपको अगर R1 ऑफ S की वैल्यू निकालनी है तो ये G1 ऑफ S इंटू R ऑफ S से वैल्यू आप निकालोगे तो R ऑफ S की वैल्यू आ जाएगी। और C ऑफ S की वैल्यू अगर निकालनी है तो C ऑफ S इज योर अगेन अप्लाई टू द सेम फॉर्मूला और सेम वर्क, C ऑफ S इज इक्वल टू योर G2 इंटू R1 ऑफ S, यानी कि C ऑफ S इज इक्वल टू G2 इंटू R1 ऑफ S। नाउ कंबाइन दिस वैल्यू ऑफ R1 ऑफ S, पुट द वैल्यू ऑफ R1 ऑफ S into here. So if you put R1 of S values into here, so your final value is G1 into G2 into R of S. So in this way your final value is achieved. But if you have to simplify this block into another format, then we can also combine this G1 and G2 like this. Here G1 and G2 are multiplied, and now if you perform the same input R of S and same output, you will achieve as C of S. Your output system is C of S is equal to G1 into G2 on R1. So here you can see that your left hand side is equal to your right hand side. That means the system is balanced and we can convert any number of blocks into another system of G1 and G2. तो अगर किसी दो या दो से अधिक ब्लॉक को अगर हमको आपस में कंबाइन करना है तो हम लोगों को ऐसे केस में क्या करना होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। G1 और G2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको G1 G2 के रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू मिल जाए। सो हियर थ्री ग्रुप्स आर देयर, G1 G2 एंड G3। इनपुट इज RS एंड आउटपुट इज योर C ऑफ S। इक्विवेलेंट अगर आपको इसका कंबाइन करके निकालना होगा तो आपके पास वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाइड फंक्शन आपको अप्लाई करना है, दैट इज G1 इंटू G2 इंटू G3। तो आप इसको अगर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन होकर ये आ जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3, और आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है C ऑफ S बाय R ऑफ S। In the previous class we have already discussed that transfer function is a ratio of Laplace of output by the ratio of Laplace of input. So output upon input is nothing but is your G1, G2 and G3. But suppose here some takeoff point is there. Here one output is there, that is G1, G2. Here one R1 of S is some takeoff point is there. Then this G1, G2, G3 which we already calculated is not applicable. Here it is not applicable, and now your system will be G1 and G2 will be combined, but for G3 we have to remove this R1. तो अगर सपोज करो कि आपके पास कोई टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे R1 ऑफ S आके कंबाइन कर जाता है, आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको यहाँ पे R1 ऑफ S एक को यहाँ पे आपके पास सिस्टम आके कंबाइन कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि G1 G2 जो है ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, लेकिन ये G3 के साथ कंबाइन तब तक नहीं हो सकता जब तक इस R1 ऑफ S के जो डिस्टर्बेंस आपके पास है, या फिर जो आप सपोज करो कि जो आपके पास टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ से रिमूव ना कर दो। रूल नंबर 2 फॉर ब्लॉक्स इन पैरेलल। अगर सपोज करो आपके पास पैरेलल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, पैरेलल ब्लॉक इन द सेंस कि आपको इनपुट से आउटपुट की तरफ में आपको यहाँ देखने को कन्वर्जन मिल रहा है, तो आपके पास यहाँ पे सिस्टम में G1, G2 और G3 ये तीनों आपस में आके कंबाइन हो रहे हैं आपको एक समिंग पॉइंट में, और ये G1, G2, G3 यहाँ पे पैरेलल ब्लॉक्स में कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम आपको अगेन ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, C ऑफ S की वैल्यू निकालते हैं, तो C ऑफ S इक्वल टू क्या होगा आपके पास मीन्स R1 ऑफ S माइनस R2 ऑफ S इंटू R3S। यहाँ पे तीन आपको जो इनपुट है वो आपको आपस में कंबाइन हो रहे हैं, R1S पॉजिटिव वैल्यू के साथ, R2 ऑफ S नेगेटिव वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल देखेगा R2 के बगल में, यहाँ पे हमने यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट जो R3 आपका सिग्नल जो प्रोड्यूस हो रहा है ये आपको पॉजिटिव सिग्नल के साथ देखने को मिल रहा है, तो R1 पॉजिटिव, R3 पॉजिटिव, R2 आपके पास नेगेटिव है, दैट मीन्स C ऑफ S इज इक्वल टू योर R1 माइनस R2 प्लस R3।
सो अगेन आपके पास सिस्टम में अप्लाई आप कर दीजिए। R1 ऑफ एस के पहले G1 लगा हुआ है तो G1 अप्लाई कर दिया मैंने, R2 के पहले G2 है तो मैंने G2 अप्लाई कर दिया, और R3 के बाद G3 है, R3 के पहले G3 है तो मैंने इसको यहाँ G3 अप्लाई कर दिया। सो दिस सिस्टम इज चेंज्ड। सो R में से यहाँ पे आप G1, G2 और G3 ये सब तीनों में से आप R को कॉमन अप्लाई कर लो तो R आपका बाहर की ओर आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक फंक्शन मिस G1 माइनस G2 प्लस G3 इंटू R ऑफ एस के रिस्पेक्ट में आपको ये फंक्शन देखने को मिलेगा। अगर इस पैरेलल ब्लॉक को हमको चेंज करना है तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा जो भी अकॉर्डिंग टू फंक्शन समिंग पॉइंट पे जो भी फंक्शन जो चेंज हो रहा है इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका G1 के साथ पॉजिटिव वैल्यू था, G2 के साथ नेगेटिव था, G3 के साथ पॉजिटिव वैल्यू था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे G1 माइनस G2 प्लस G3। अब इसका अगर आप निकालोगे दैट मीन्स RHS और LHS को आप अगर देखोगे तो आप यहाँ पे RHS और LHS बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू को देखने को मिलेगा। सो in this way the gain of blocks connected in parallels get added algebraically। algebraical function आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्लॉक्स में चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कैसे हम फीडबैक लूप को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आपके पास दो फंक्शन आपके पास है, एक आपको यहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन देखने को मिल रहा है और एक आपके पास जो नेक्स्ट हम लोग अभी स्लाइड्स में देखेंगे आपको वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक। तो दो तरीके का फीडबैक होता है, एक आपको पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है, एक आपके पास नेगेटिव फीडबैक का यूज देखने को मिलता है। जनरली वी यूज नेगेटिव फीडबैक लूप to eliminate certain parameters or to make our system more stable we use our negative feedback loop। नेगेटिव फीडबैक लूप आपको ज़्यादा देखने को मिलता है पॉजिटिव फीडबैक लूप के रिस्पेक्ट में। So C of s by R of s again your transfer function, this system will be changed according to the formula G1 plus or minus G of s। Here plus or minus are used, so as the system is using here positive feedback we will apply negative, but suppose if your system is your negative feedback loop, what we do is here when we apply a negative feedback loop like that in the previous section we have already discussed according to this you will get a positive signal। So for negative signal you will get a positive response। So again we will get a basic general description is there। E of s, that is you have to calculate your error signal, E of s is nothing but your input signal minus B of s, that is this B of s minus R of s is get your E of s। You will get E of s from this feedback signal and this input signal. If you get subtracted it will get error signal। So from here calculate R of s value or simply calculate C of s। So C of s is equal to your G into E of s, put the value of ES here, RS minus BS, this value is putting here। So after that your value will be changed and now simplify it like this, but from here this B of s value, this BS value we can get from H of s into C of s, that is B of s is equal to H into C of s। Input your system is your system is there and your output is there, sorry your output is there and your input is there। So according to this B of s is equal to H into C of s। Now calculate the value of C of s, C of s is equal to G into R of s minus G into H into C of s। So according to this calculate that overall feedback loop। So now means combining this all the form, G of s को एक तरफ ले जाइए, इनपुट को आप एक तरफ लेके आओ तो G into R of s आपका इनपुट साइड हो जा रहा है, ये आपके पास आउटपुट साइड देखने को मिल रहा है। So according to this you will calculate the C of s by R of s, that is our input upon your output, you will get a positive or for negative feedback system। Unlike for positive feedback, अगर सपोज करो अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, व्हाट विल चेंज इज देयर, हियर योर साइन विल बी कन्वर्टेड टू नेगेटिव फीडबैक। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप नेगेटिव फीडबैक के लिए यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे ये साइन G डिवाइड बाई 1 प्लस GH का यूज़ करना। अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिग्नेचर के लिए यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप सिस्टम के लिए आप यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई करोगे। नेक्स्ट इज जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो यहाँ पे आपके रूल्स क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दो समिंग पॉइंट आपके पास है तो इन दोनों समिंग पॉइंट को आप इंटरचेंज कर सकते हो। दैट मीन्स आपके पास अगर दो समिंग पॉइंट था, मेरे पास एक B1 वैल्यू था, एक आपके पास यहाँ पे B2 वैल्यू देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों को आप चेंज करके B2 वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हो राइट हैंड साइड में और इस वैल्यू को आप शिफ्ट कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में। सो समिंग पॉइंट्स आर इंटरचेंजेबल। इसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है कि x इज इक्वल टू R ऑफ s माइनस B1,
ठीक है, सी ऑफ एस इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टू। और इस तरीके से अगर आप वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो आपको आउटपुट फंक्शन यहाँ पे मिल जाता है। सो समिंग पॉइंट्स आर इंटरचेंजेबल। नेक्स्ट मेरे पास जो रूल है, रूल नंबर 5, शिफ्ट द समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। ये जो आपके पास समिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है, इस समिंग पॉइंट को हम उठा के यहाँ पे इस बिफोर द ब्लॉक भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप इस समिंग पॉइंट को उठा के बिफोर द ब्लॉक शिफ्ट करते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी आपके पास सिस्टम के पहले अगर आप शिफ्ट कर रहे हो उस सिस्टम का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/g दैट इज आपका रेसिप्रोकल आपका सिस्टम में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी आपका ब्लॉक्स है उसका आप रेसिप्रोकल अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन जो मिलता है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस सी ऑफ एक्स की वैल्यू जो मिलती वो आपको मिलती है आर एस इंटू जी प्लस एक्स, दैट इज इस आर एस प्लस जी, और ये एक्स आपका समिंग पॉइंट से एक पॉइंट आ रहा था तो आर एस इंटू जी प्लस एक्स आपको इस वैल्यू का इस पॉइंट का आपके पास एक वैल्यू सेटअप देखने को मिलता है। इस वैल्यू को अगर हम कन्वर्ट करते हैं और अपने समिंग पॉइंट को अगर चेंज करते हैं तो इस वैल्यू में भी मेरे को चेंज नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस सी ऑफ एस की वैल्यू निकालोगे तो g इंटू आर ऑफ एस प्लस एक्स बाई जी अगेन आपके पास ये जो फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास समिंग पॉइंट डिवाइड बाई जी से आ रहा है। जो हमने चेंजेस किया उस चेंजेस से कुछ हमको चेंज देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे जब भी आप समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के पहले शिफ्ट करोगे तो आपको उसका रेसिप्रोकल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लाइकवाइज इफ़ यू शिफ्ट द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, एक समिंग पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है, इस समिंग पॉइंट को हम शिफ्ट आफ्टर दिस ब्लॉक करना चाहते हैं, यानी कि समिंग पॉइंट को हम इस ब्लॉक के बाद रखना चाहते हैं। तो यहाँ ऐसे कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो जी आपका ब्लॉक है ये जी आपके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है और ब्लॉक जो है आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पिछले केस में हमने यहाँ पे देखा था कि रेसिप्रोकल होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप किसी समिंग पॉइंट को अगर किसी ब्लॉक के बाद अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो तो ऐसे केस में आपके पास यहाँ पे जो आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो उसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है कि समिंग पॉइंट जो होता है अगर आपको उसके पहले अगर आप शिफ्ट करते हो तो आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल देखने को मिलता है, और अगर आप समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद में अगर शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे आपको इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि शिफ्ट अ टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि सपोज करो कि आपके पास कोई समिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि आपके पास समिंग जंक्शन जो होता है जहाँ दो से अधिक जंक्शन मतलब कि आपको पॉइंट्स आके मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक टेक ऑफ पॉइंट लगा हुआ है। टेक ऑफ पॉइंट मेरे पास इसकी वैल्यू मेरे पास x गिवन है, ठीक है। तो इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर आप मूव करना चाहते हो तो अगर आप इस टेक ऑफ पॉइंट को मूव करते हो किसी भी ब्लॉक के बिफोर, यानी कि इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर की ओर शिफ्ट करना चाहते हो तो आपके पास जो भी फंक्शन है उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो हम लोगों ने आपका समिंग पॉइंट में रूल्स देखा था उस रूल के जस्ट अपोजिट ये टेक ऑफ पॉइंट में आपको देखने को मिलता है। सो हेयर रूल इज चेंजिंग एंड अगर आप टेक ऑफ पॉइंट के बाद में अगर शिफ्ट करते हो तो आपको ये जी पैरामीटर के साथ मल्टीप्लाई होकर आपको देखने को मिलता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जस्ट अपोजिट समिंग पॉइंट का हो रहा है। तो समिंग पॉइंट का रूल अगर आपके पास आफ्टर द ब्लॉक के लिए अगर आपके पास जो रूल था वो आपके पास 1/g का आ रहा था, जी के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे आपको इसके जस्ट अपोजिट 1/g देखने को मिलेगा। दैट मीन्स आपका जो समिंग पॉइंट का जो ब्लॉक है ये आपका ब्लॉक चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि आप एक रूल को आप याद रखो, दैट इज समिंग पॉइंट के लिए अगर आप रूल्स को याद रख रहे हो तो समिंग पॉइंट का जो भी रूल आपके पास एप्लीकेबल होगा उसके जस्ट अपोजिट आपको टेक ऑफ पॉइंट में करना है। यानी कि समिंग पॉइंट का रूल अगर आप याद रखते हो तो उसके जस्ट अपोजिट आपको टेक ऑफ पॉइंट के लिए रूल अप्लाई करना है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस ब्लॉक डायग्राम टेक्निक और हाउ टू सॉल्व दिस ब्लॉक डायग्राम फंक्शन। सो 3 रूल आपको याद रखना है, 3 गोल्डन रूल्स मैं ऐसे बोलता हूँ। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है कि आपको देखना है कि कोई सीरीज है या नहीं है। अगर कोई ब्लॉक आपस में सीरीज में है तो सबसे पहले आप उसे सॉर्ट आउट करियो। सेकेंड प्रेफरेंस जो होता है आप पैरेलल ब्लॉक को दो, यानी कि रूल नंबर 2 को आप दो। पैरेलल ब्लॉक अगर आपके फंक्शन में है तो इस पैरेलल ब्लॉक को आप सॉल्व कर लो। थर्ड प्रेफरेंस द रूल नंबर 3 फ्रॉम फीडबैक लूप। अगर कोई फीडबैक लूप आपके पास है तो उसको आप एलिमिनेट कर लो, आपका प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सपोज आपके पास ना तो ये 3 प्रेफरेंस आपके पास काम नहीं कर रहा है, इन तीनों चीज़ को चॉइस को मैं गोल्डन रूल की तरह पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अगर आपको चेक करना है तो ये 3 पॉसिबिलिटी आप चेक करो कि ये 3 पॉसिबिलिटी आपके पास देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये 3 पॉसिबिलिटी नहीं मिल रहा है तो इसके लिए हम लोग सेकंड चॉइस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूल नंबर 4th, 5th, 6th और 7th, 8th जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 4 क्या है, समिंग पॉइंट को एडजस्ट करिए। समिंग पॉइंट को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इंटरचेंज करके,
ठीक है, यानी कि इंटरचेंज ऑफ समिंग पॉइंट अगर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप ऐसे केस में क्या करोगे कि शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट को आप दो तरीके से शिफ्ट कर सकते थे, या तो आप बिफोर कर सकते हो या आफ्टर कर सकते हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी आप चेक करो कि आप बिफोर कर सकते हो या फिर आफ्टर कर सकते हो। अगर फिर भी आपका बात नहीं बनता है तो आपका लास्ट आपके पास पॉइंट है कि सिर्फ द टेक ऑफ पॉइंट। अगर आपके पास कोई सिस्टम में कोई टेक ऑफ पॉइंट है तो उस टेक ऑफ पॉइंट को अगेन आप बिफोर या आफ्टर शिफ्ट करो। तो इससे आपको क्या होगा, इस एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी इन तीनों एडजस्टमेंट में से कोई एक या फिर दो एडजस्टमेंट आप करते हो तो अगेन आपके पास ये फिर से चॉइस आपको मिल जाएगा कि आप या तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक रूल्स और दीज आर द सपोर्टिव रूल्स। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास G1 G2 दो ब्लॉक्स हैं, G4 G3 G5 ये ब्लॉक्स हैं, G6 ब्लॉक्स हैं, और एक आपका आउटपुट से आपको इनपुट की तरफ में एक आपके पास फीडबैक लूप आपके पास लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये G1 G2 आपस में कंबाइन नहीं हो सकता है। G1 G2 आपस में कंबाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कंबाइन? बिकॉज अ टेक ऑफ पॉइंट इज देयर। G4 G3 G5 आपको अगर ध्यान से याद होगा तो जो फीडबैक पाथ होता है, ये आपका जो पाथ होता है ये आपको फॉरवर्ड पाथ होता है। तो जो फॉरवर्ड पाथ में आते हैं आपके पास, अगर एरो का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो जो फॉरवर्ड पाथ में आपके आते हैं वो आपको पैरेलल ब्लॉक्स कहलाते हैं। सिमिलरली अगर आउटपुट से आपके इनपुट की तरफ मूव करता है तो ये आपको फीडबैक पाथ कहलाता है। तो ये जो G4 G3 और G5 आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको इनपुट से आउटपुट की तरफ में सिग्नल फ्लो हो रहा है, तो ये आपस में आप यहाँ पे कंबाइन हो सकता है। तो आपको अगर देखो रूल नंबर 1 अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है तो हम रूल नंबर 2 को चेक करेंगे। तो रूल नंबर 2 जो है वो आपको G4 G3 G5 में अप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रूल नंबर 2 अप्लाई कर देंगे, यानी कि ये G4 G3 और G5 जो हाईलाइटेड सेल आप देख रहे हो, इस सेल में हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। तो इसके अप्लाई करने से आपको क्या देखने को मिलेगा कि G4 के साथ पॉजिटिव, G3 के साथ पॉजिटिव और G5 के साथ भी पॉजिटिव है। सो दीज 3 आर अलजेब्रिकली एडेड। Here we can see that G3, G4, G5 is added. So next again वापस से फिर से एक बार कंबाइन करते हैं। तो रूल नंबर 1 जो मेरे पास था वो सीरीज। तो अभी भी देखो G1 H1 सीरीज में आपका कनेक्टेड नहीं हो सकता है, यानी G1 G2 आपका सीरीज में कनेक्टेड नहीं हो सकता है। बट G2 एंड G3 G4 G5 दीज आर अगेन कैस्केडेड, और ये आपको सीरीज में आपको मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो इसको हम लोग सीरीज में सेकंड रूल अप्लाई करके इसको फर्स्ट रूल को अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास जो रूल नंबर 3 है, ठीक है, रूल नंबर 3 मेरे पास आपके पास आता है कि ये आपका जो फीडबैक लूप है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो फीडबैक एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे आपका सिग्नल जो आपके पास अगर नेगेटिव फीडबैक सिग्नल है आपके पास, तो नेगेटिव सिग्नल का आप अपने अप्लाई करिए और इसको फीडबैक लूप को आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हो। तो ये आपके पास G1 1 + G1 × H1 आपके पास ये ब्रेक होके आपके पास ये मिल गया। अगेन दिस इज इन सीरीज और दिस इज इन कैस्केडेड फॉर्म। और कैस्केडेड फॉर्म में जब होता है तो हम अगेन रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1, जब कभी भी जो दो सिग्नल आपको सीरीज में होते हैं तो इनको हम आपको ऐड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास इन दोनों सिग्नल को आप आपस में कैस्केड करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दिस सिग्नल इज मल्टीप्लाइड एंड यू विल गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ यू कैन सी दैट ये सिग्नल, ये आपके पास जो ब्लॉक आपके पास है और यहाँ पे G6 का ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपके पास एक टेकअप पॉइंट है। रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं हो सकता है। रूल नंबर 2 कोई भी यहाँ पे ब्लॉक मतलब कि फॉरवर्ड आपके पास पैरेलल ब्लॉक नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम रूल नंबर 3 अप्लाई करेंगे। ये जो आपका H2, ये जो फीडबैक पाथ, ये जो नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो नेगेटिव फीडबैक का पाथ आपके पास था, इस नेगेटिव फीडबैक पाथ को अप्लाई करते हुए इस फीडबैक लूप को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेशन करने के बाद मेरे को ये आप जो फंक्शन जो है इस फंक्शन को आप एलिमिनेट करोगे तो ये इस फंक्शन का जो फॉर्मूला आपको याद होगा कि C/R इज इक्वल टू G डिवाइड बाय 1 माइनस है फीडबैक सिग्नल तो आपको प्लस अप्लाई होगा, तो 1 + G इस सिग्नल को आप अप्लाई करके यहाँ पे ये जो मतलब कि फंक्शन है ये आपके पास ये G हो जाएगा और ये आपके पास ये फंक्शन H हो जाएगा। ये G और H को जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे, पुट करेंगे और आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट इस फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि आपके यहाँ पे जो टेकअप पॉइंट है वो एलिमिनेट हो चुका है और ये 2 ब्लॉक्स आर इन सीरीज, दैट इज फर्स्ट ब्लॉक एंड आपका सेकेंड ब्लॉक जो है ये आपको सीरीज में देखने को मिल रहा है। इन दोनों को आपस में आप इंटरकनेक्ट करोगे
तो यू विल गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट मींस आपका G6 यहाँ पे आपको मीन्स आपको कैस्केडेड होकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इस फंक्शन का हमको क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट योर रेशियो ऑफ C ऑफ S by R of S, the ratio of Laplace of means output by ratio of Laplace of input. So C of S by R of S is equal to your G of S. G of S is your this system. So the ratio अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आप मैथमेटिकली किसी ब्लॉक डायग्राम को आप सॉल्व कर सकते हो। That's all. Thank you.